So hello everyone, welcome to my YouTube channel. My name is Yash Jain, आपका केमिस्ट्री टीचर. So in this video आपने एज अ थंबनेल देख ही लिया होगा. हम IIT JEE के थर्मोडायनेमिक्स के PYQs करने वाले हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं. मैंने सारे कॉन्सेप्ट डिस्कस करे हैं. जो भी क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट्स थे वो सारे डिस्कस करे हैं. ये नीट के बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं क्योंकि नीट में भी IIT JEE मेंस के लेवल के क्वेश्चंस तो आने ही वाले हैं. ओके, तो 2025 का पेपर थोड़ा लेवल अप होगा, इतना भी नहीं होगा बट लेवल अप होगा. सो नीट वाले बच्चों को भी ये जरूर देखना चाहिए. So let's begin now. Okay, so let's start now. So the first question is 0.08 kg air is heated at constant volume through 5 degrees Celsius. Okay, so what is given? Okay, let's read the question complete. So the specific heat of air at constant volume is 0.17 kilocalorie. Okay, it is given in kilocalorie per kg degree Celsius. And the conversion is also given that 1 joule is equals to 4.18 joule per calorie. They have asked the change in its internal energy approximately. So how we have to do it? Let's see. So now they have said at constant volume. So volume is constant, okay? If volume is constant, then we know that W equals to minus P dV. So the volume is constant, so del V equals to 0. So W equals to 0. If W equals to 0, then del U equals to Q. So whatever be the value of Q, it will be equal to del U or change in internal energy, which we have to find. Now what is the formula of Q? Okay, because they have given the specific heat of air. Okay, they have given the specific heat of air is 0.17 kilocalorie per kg degree Celsius. So it is C1 is given. Okay, CV is given 0.17 kilo. We have to convert kilocalorie to calorie. So 10 to the power 3 calorie per kg degree Celsius. Okay, so we have to apply this formula. Q equals to we know this formula that del U equals to what? mCV del T, where m is the mass. M is the mass. So del U will be equals to m is given 0.08 kg, so 0.08. CV is given 0.17 into 10 to the power 3 is 1000 into del T. Now, so del T will be 5 degrees Celsius, because del T we have to take the difference. Okay, so either it will be in Kelvin or it will be in degree Celsius. Del T will remain same. Okay, 5 degrees Celsius or 5 Kelvin, because it is a difference. Okay, so difference will remain same in degree Celsius and Kelvin, so into 5. Okay, now we have to solve this, but before that we have to convert this calorie into joule. So again I am writing this 0.08 and 0.17. I have to convert this into joule. Okay, मेरे को joule में convert करना पड़ेगा. So 0.17 को किससे multiply करना पड़ेगा? मेरे को multiply करना पड़ेगा 4.18 से. Okay, they have given that 1 joule equals to 4.18 joule per calorie. Okay, so calorie से calorie cancel हो जाएगा और हमारा आंसर आ जाएगा joule में. So it will be 4.18 into 5 is the del T. When you solve this, you will get, ये तो बहुत easy है solve करना, तो solve हो जाएगा 284 जूल हमारा आंसर आएगा. That is option C. Okay, so C option correct है इस क्वेश्चन का. Option C is the correct. Okay, 284 जूल. So यहाँ पे मैं 1000 लिखना भूल गया हूँ, यहाँ पे 1000 भी आएगा. ओके, थाउजेंड multiplied by 4.18 into 5. When you solve this, you will get 284 something. Okay, 284.4. So the answer will be 284. Okay, so the answer will be C option. Let's move on to the next question. देखो हमको क्या दे रखा है. Pressure of a gas is found to be proportional to the cube of its absolute temperature. फॉर्मूला होगा क्या होगा? हमारा फॉर्मूला हो जाएगा P1 माइनस गामा
टी गामा इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। ठीक है, एडियाबैटिक के लिए एक फॉर्मूला होता है, और एक क्वेश्चन बोल रहा है कि द रेशियो ऑफ सी पी अपॉन सी वी हमको निकालना है। सी पी अपॉन सी वी क्या होता है? सी पी अपॉन सी वी गामा ही तो होता है, तो हमको गामा निकालना है। और हमको क्या दे रखा है? द प्रेशर ऑफ अ गैस इज फाउंड टू बी प्रोपोर्शनल टू द क्यूब रूट ऑफ इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर। मतलब जो प्रेशर है वो टी क्यूब के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है। अब मुझे इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को कंपेयर करना पड़ेगा, पहले बनाना पड़ेगा इस इक्वेशन को, जो फर्स्ट इक्वेशन है उसको इस इक्वेशन की तरह बनाना पड़ेगा। तो मैं क्या करूँगा, P इक्वल्स टू टी क्यूब के लिख दूंगा। जब प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो क्या बन जाएगा? कांस्टेंट आ जाएगा जो कि k है। और मैं क्या लिख सकता हूँ इसको? P अपॉन टी क्यूब इक्वल्स टू के, और मैं लिख देता हूँ P t माइनस थ्री इक्वल्स टू के। ठीक है, हमारी इक्वेशन बन गई P t माइनस थ्री इक्वल्स टू के। यहाँ पे P की पावर 1 है और T की पावर माइनस थ्री है, तो इस इक्वेशन में भी सेम, इस इक्वेशन में भी ऐसे कर देते हैं। हम क्या करते हैं, ये 1 माइनस गामा को हमको हटाना है। ठीक है, हमको P की पावर इस इक्वेशन में हमको P की पावर क्या करना है? 1 करनी है। तो मैं क्या करता हूँ, दोनों तरफ 1 माइनस गामा की पावर ले लेता हूँ। कांस्टेंट तो कांस्टेंट ही रहेगा, कोई नया कांस्टेंट बन जाएगा जब 1 माइनस गामा की पावर लूंगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? P 1 माइनस गामा अपॉन 1 माइनस गामा, ये पावर में है। टी की पावर क्या बन जाएगी? गामा अपॉन 1 माइनस गामा, और जब इसकी कांस्टेंट की पावर होगी तो ये नया कांस्टेंट बन जाएगा, लिख देते हैं K1। ठीक है, अब ये 1 माइनस गामा तो कैंसिल हो जाएगा, ये 1 माइनस गामा कैंसिल, और क्या बन जाएगा? P t गामा अपॉन 1 माइनस गामा इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। इस इक्वेशन को बोल देता हूं मैं सेकंड। अब मैं फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को कंपेयर करूंगा, अगर मैं फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को कंपेयर करूंगा तो क्या बन जाएगा? तो हमको क्या पता लग जाएगा कि एक हमारी इक्वेशन है P t माइनस थ्री इक्वल्स टू के, और एक हमारी इक्वेशन है P t गामा अपॉन 1 माइनस गामा इक्वल्स टू के। तो अब मैं कंपेयर कर सकता हूं, तो हमारा क्या हो जाएगा? जो गामा अपॉन 1 माइनस गामा है वो किसके इक्वल हो जाएगा? माइनस थ्री के। इसको सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा? गामा इक्वल्स टू माइनस थ्री प्लस थ्री गामा, थ्री इक्वल्स टू थ्री गामा माइनस टू माइनस गामा, थ्री गामा माइनस गामा, दिस गिव्स थ्री गामा माइनस गामा इक्वल्स टू 2 एंड गामा इक्वल्स टू 3/2। तो हमारा आंसर आ जाएगा गामा इक्वल्स टू 3/2, जो कि ऑप्शन है। तो गामा इक्वल्स टू 3/2 ऐसे आंसर आएगा, इसे हमको सॉल्व करना है, जो कि ऑप्शन बी है। ठीक है, तो बी ऑप्शन क्या होगा? सही होगा, गामा इक्वल्स टू 3/2। ऐसे हमको सॉल्व करना है। ठीक है, कंपेयर करके पहले फर्स्ट इक्वेशन बनानी है जो क्वेश्चन में दे रखा है, उसके बाद सेकंड इक्वेशन तो हमारे फॉर्मूले से बनेगा, जो कि हमको याद होना चाहिए, दैट इज P 1 माइनस गामा टी गामा इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। ये कौन सी इक्वेशन है? ये प्रेशर और टेम्परेचर के रिलेशन में है। ठीक है, एक इक्वेशन होती है प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में, और एक इक्वेशन होती है वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच में। आपको तीनों इक्वेशंस याद होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ एन आइडियल गैस, क्या दे रखा है? द प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ एन आइडियल गैस आर रिलेटेड बाय एस PV 3/2 PV raised to 3/2 equals to K. The work done when the gas is taken from the state this to state this. कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? हमको दे रखा है PV 3/2 इक्वल्स टू K, और कंडीशन क्या दे रखी है? हमको वर्क डन निकालना है और प्रेशर और वॉल्यूम आइडियल गैस दे रखे है। ठीक है, आइडियल गैस दे रखा है। अब हमको वर्क का फॉर्मूला पता होना चाहिए। वर्क डन बाय द गैस, आइडियल गैस में वर्क डन बाय द गैस क्या होता है? और ये क्या है 3/2? पहले तो ये पता होना चाहिए कि PV 3/2 है, तो PV 3/2 में 3/2 क्या है? 3/2 है गामा। ठीक है, तुमको वर्क का ऐसा फॉर्मूला लेना है जिसमें गामा आता हो, क्योंकि हमको PV 3/2 दे रखा है। तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है? W इक्वल्स टू NR डेल्टा T अपॉन 1 माइनस गामा, यही फॉर्मूला होता है।
अब एन आर डेल्टा टी को क्या लिख सकता हूँ मैं, P2V2 माइनस P1V1, क्योंकि आइडियल गैस है, आइडियल गैस में हमको पता है PV इक्वल्स टू क्या होता है, nRT होता है, और यहाँ पे डेल टी है तो डेल टी के लिए क्या हो जाएगा, P2V2 माइनस P1V1। अब P2V2 की वैल्यू तो हमको देनी रखी है और क्वेश्चन में हमको P2V2 की टर्म्स में ही पूछा है, तो हम P2V2 रहने देंगे इनको, ठीक है। अब हम 1 माइनस गामा, तो गामा की वैल्यू पुट कर देंगे। गामा की वैल्यू क्या है, अगर कंपेयर करेंगे हमारी इक्वेशन को, हमारी इक्वेशन क्या होती है, हमारी इक्वेशन होती है PV गामा इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। यहाँ पे गामा क्या हो जाएगा जब कंपेयर करेंगे, गामा हो जाएगा 3/2, तो हम रख देंगे 1 माइनस 3/2, इसको सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे 2 माइनस 3 माइनस 1 माइनस 1/2, 2 ऊपर चले जाएगा और माइनस ऊपर आ जाएगा, तो -2 हो जाएगा P2V2 माइनस P1V1। नेगेटिव अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे और 2 बाहर ही रहने देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे नेगेटिव, तो P1V1 हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर आ जाएगा 2P1V1 माइनस P2V2। ऑप्शन कौन सा है ये, ऑप्शन देख लेते हैं हम, ऑप्शन हमारा P1V1 होना चाहिए, ठीक है पहले, तो ऑप्शन ए हमारा सही है, ठीक है। बी गलत हो जाएगा क्योंकि बी में P2V2 दे रखा है, हमारा ऑप्शन सही होगा P1V1 माइनस P2V2। सो दैट्स हाउ यू हैव टू अटेंड दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको कहता है कि ये डायटोमिक गैस गामा की वैल्यू दे रखी है 1.4, डज 200 जूल ऑफ वर्क व्हेन इट इज एक्सपेंडेड आइसोबारिकली, ठीक है। आइसोबारिकली मतलब क्या कांस्टेंट है, प्रेशर कांस्टेंट है, ठीक है, प्रेशर कांस्टेंट है, और हीट गिवन टू द गैस इन द प्रोसेस इज, हीट गिवन पूछा है और हमको क्या दे रखा है, वर्क दे रखा है। वर्क इक्वल्स टू क्या दे रखा है, 200 जूल, ये दे रखा है, और क्या दे रखा है, और पहले लिख लेते हैं जो दे रखा है, गामा इक्वल्स टू 1.4 और डायटोमिक गैस है, ठीक है। तो W क्या होता है, आइसोबारिकली दे रखा है, आइसोबारिकली मतलब प्रेशर क्या है, कांस्टेंट है। अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो हमारा फॉर्मूला हम क्या लेते हैं, NR डेल टी लेते हैं, ठीक है। माइनस P डेल V क्या होता है, NR डेल टी हो जाएगा। हमको निकालना हीट गिवन टू द गैस, हीट का कौन सा फॉर्मूला लेंगे, हमको दे रखा है एट कांस्टेंट प्रेशर, तो प्रेशर कांस्टेंट होगा मतलब CP की फॉर्मूला लेना है, तो NCP डेल टी। बट हमको यहाँ पे CP की वैल्यू देनी रखी है, हमको गामा की वैल्यू दे रखी है, ठीक है। तो हमको पता है फॉर्मूला जो CP और गामा की रिलेशन बताता है, CP इक्वल्स टू गामा R अपॉन गामा माइनस 1, ये पता होना चाहिए फॉर्मूला। ये किसके बीच में रिलेशन होता है, CP और गामा के बीच में रिलेशन होता है, CP इक्वल्स टू गामा, CP इक्वल्स टू गामा R अपॉन गामा माइनस 1, तो हम रख देते हैं CP की जगह, तो Q में क्या रख देंगे, CP की जगह रख देंगे N गामा R अपॉन गामा माइनस 1 डेल टी। अब क्या करेंगे, देखो हमारे को वर्क की इक्वेशन, वर्क की वैल्यू दे रखी है और ये वर्क यही होता है 200 जूल, ठीक है। NR डेल टी क्या है, 200 जूल है, तो हम यहाँ से NR डेल टी देखते हैं कि NR डेल टी अलग आ जाएगा क्या, तो आ जाएगा, वो कैसे आएगा, NR डेल टी अलग लिख लेते हैं, क्या बचा हमारे पास, गामा अपॉन गामा माइनस 1 बचा। NR डेल टी की वैल्यू क्या लिख रखी है, मैं इधर लिख देता हूँ, NR डेल टी की वैल्यू दे रखी है हमको, तो क्यों हो जाएगा, NR डेल टी की वैल्यू क्या दे रखी है 200, तो 200 लिख देता हूँ इधर, 200 जूल इनटू मल्टीप्लाइड बाय गामा अपॉन गामा माइनस, गामा की वैल्यू कितनी है, गामा की वैल्यू दे रखी है हमको 1.4, तो 1.4 अपॉन 1.4 माइनस 1, ये इजीली सॉल्व हो जाएगा। जब सॉल्व होगा तो क्या आ जाएगा हमारा आंसर, 700 जूल। सो दैट्स हाउ यू हैव टू डू। तो आपको पता होना चाहिए कि W का ये वाला फॉर्मूला तो सबको पता, ये तो पता ही होता है अपन को, NR डेल टी, ये वाला फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, CP और गामा के बीच में रिलेशन, ठीक है। सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम।
नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8. क्या पूछ रहा है वो? 1 gram of a liquid is converted to vapor at 3 into 10 to the power 5 Pascal. Okay, क्या दे रखा है? 3 into 10 to the power 5 Pascal. If 10% of the heat supplied is used for increasing the volume by 1600 centimeter cube. Okay, मतलब सिंपल क्वेश्चन है. एक लिक्विड है जिसको कन्वर्ट करा है वेपर में, जिसका प्रेशर दे रखा है हमको. 10% हीट जो है वो सप्लाइड हो गई फॉर इंक्रीजिंग द वॉल्यूम बाय दिस ड्यूरिंग दिस फेज चेंज. देन द इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी पूछा है, मतलब हमको डेल्यू निकालना है. क्या निकालना है हमको? डेल्यू निकालना है. तो निकालते हैं. पहले क्या निकालना है हमको? डब्ल्यू निकालना पड़ेगा. डब्ल्यू होता है हमारा पी डेल वी, क्योंकि डेल्यू क्या होता है? डेल्यू होता है क्यू माइनस डब्ल्यू. तो हमको क्या करना पड़ेगा? पहले डब्ल्यू निकालना पड़ेगा. सो डब्ल्यू हो जाएगा पी. पी कितना दे रखा है? 3 इंटू 10⁵ पास्कल इंटू वॉल्यूम. इंक्रीज कितना हुआ है? मतलब इंक्रीजिंग द वॉल्यूम बाय दिस, तो मतलब ये डेल वी दे रखा है हमको. ठीक है, डेल वी दे रखा है 1600 और सेंटीमीटर क्यूब में दे रखा है, तो हमको मीटर क्यूब में निकालना पड़ेगा. तो कैसे निकालेंगे? तो कन्वर्ट कैसे करेंगे? तो हमको पता है कि 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 10⁻² मीटर. ठीक है, तो यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब है, तो आ जाएगा 10⁻² होल क्यूब मीटर और 10⁻6 मीटर. ठीक है, तो ये हो जाएगा इंटू, क्या लिख देंगे? इंटू 10⁻6 मीटर क्यूब. ठीक है, यहाँ मीटर क्यूब भी होगा. मीटर क्यूब. तो इसको सॉल्व कर लेंगे. इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? ये सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 480 जूल. ठीक है, W आ जाएगा 480 जूल. अभी हमारा आंसर क्वेश्चन नहीं हुआ है, अभी हमको पूछा है इंटरनल एनर्जी में चेंज. तो 10 W आ गया 480 जूल. अभी बोल रहा है कि इतना ये हमारा वर्क हुआ है. ठीक है, अब ध्यान समझना इस क्वेश्चन को. वो बोल रहा है कि ये जो वर्क हुआ है वो कितनी परसेंट हीट सप्लाइड से हुआ है? सिर्फ 10% हीट सप्लाइड करी है, इज यूज फॉर इंक्रीजिंग द वॉल्यूम. तो 10% हीट से वर्क हुआ है. ठीक है, ओनली 10% हीट इज रिक्वायर्ड इन दिस वर्क. ठीक है, ओनली 10% हीट इज रिक्वायर्ड. मतलब टोटल में से 10% इतना है. ठीक है, टोटल का 10% इतना है. ऐसा बोल सकते हैं हम कि टोटल का 10% क्या है? इतना है. तो हम निकाल सकते हैं टोटल कितना होगा, क्योंकि हमको पता है 10% का टोटल इतना है. तो हम कैसे निकालेंगे? 10/100 टोटल हमको नहीं पता, इंटू एक्स, और 10% का टोटल क्या है? 480. ठीक है, यहाँ से हमारा क्या निकलेगा? एक्स क्या है? टोटल हीट. तो एक्स हो जाएगा 480 इंटू 100/10. तो ये आ जाएगा 4800 जूल. ओके, तो हमारी टोटल हीट जो है वो इतनी है. टोटल हीट हमारी इतनी है. इस टोटल हीट में से 10% जो है वो किस में यूज हो गई? वो वर्क करने में यूज हो गई. ठीक है, वो किस में यूज हो गई? वर्क करने में यूज हो गई. तो इंटरनल एनर्जी में कितना इंक्रीज होगा वो ये पूछ रहे हैं. तो जितना वर्क में यूज हुआ उसके अलावा सारा क्या होगा? इंटरनल एनर्जी में इंक्रीज होगा. तो हमारा डेल्यू हो जाएगा Q माइनस डब्ल्यू. Q क्या है? 4800 माइनस 480. तो 4800 माइनस 480 हो जाएगा 4320 जूल. डेल्यू हो जाएगा 4320 जूल. ऐसे आपको सॉल्व करना है. ठीक है, तो ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन था, कॉन्सेप्ट लग रहा था इजीली कि 10% हीट रिक्वायर्ड है. 10% हीट में, टोटल हीट में से 10% हीट ही वर्क में यूज हो रहा है. ठीक है, तो बची हुई क्या होगी? इंटर एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी. सो हमारा आंसर आ जाएगा 4320. तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन ए 4320. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग है. ओके, मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2. इजी क्वेश्चन है, देखते हैं. देखो, बोल रहा है आइसोथर्मल प्रोसेस. आइसोथर्मल प्रोसेस में हमको क्या पता है कि
टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो इंटरनल एनर्जी में भी कांस्टेंट होगी, तो नो चेंज इन इंटरनल एनर्जी, ठीक है। तो ए का क्या हो जाएगा सेकंड, तो ए का सेकंड सिर्फ ए ऑप्शन में और बी ऑप्शन में, तो सी हट जाएगा और डी हट जाएगा। एडियाबैटिक प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या होता है, वर्क डन बाय द गैस डिक्रीजेज इंटरनल एनर्जी, यस, क्योंकि एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या होता है, क्यू क्या होता है, जीरो होता है, तो डेल यू क्या हो जाएगा माइनस डब्ल्यू, तो मतलब क्या हो रहा है, वर्क डन बाय द गैस डिक्रीजेस, मतलब जितना भी वर्क हो रहा है उसकी वजह से क्या डिक्रीज हो रही है, इंटरनल एनर्जी डिक्रीज हो रही है, तो हमारा बी का ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट। तो बी का ऑप्शन फर्स्ट और ए का ऑप्शन टू, तो ये तो ए और बी दोनों में हो सकते हैं, हमको देखना पड़ेगा सी और डी, ठीक है। आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस मतलब आइसोकोरिक प्रोसेस में क्या होता है, वॉल्यूम कांस्टेंट होता है हमारा, अगर वॉल्यूम कांस्टेंट हो जाएगा तो डब्ल्यू क्या होता है माइनस पी डी वी, तो डब्ल्यू क्या हो जाएगा जीरो, मतलब नो वर्क डन, ठीक है। वर्क डन नहीं होगा तो सी का क्या हो जाएगा हमारा फोर्थ, तो हमारा सी का हो जाएगा फोर्थ, तो हमारा ऑप्शन सही जो ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा, बी, ठीक है। ए गलत हो जाएगा, ए गलत हो जाएगा, बी ऑप्शन सही होगा हमारा, ए का सेकंड, बी का फर्स्ट, सी का फोर्थ और डी का थर्ड। डी भी देख लेते हैं एक बार, आइसोबारिक, आइसोबारिक मतलब प्रेशर कांस्टेंट, तो प्रेशर कांस्टेंट होगा तो द हीट एब्जॉर्ब गोज पार्टली टू इंक्रीज इंटरनल एनर्जी एंड पार्टली टू डू वर्क, ओके। प्रेशर कांस्टेंट है तो वर्क तो हो गई, बट जो भी हीट एब्जॉर्ब होगी वो आधी जो है इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करेगी और आधी वर्क में रिक्वायर्ड होगी, ठीक है। तो हमारा डी का ऑप्शन हो जाएगा थर्ड, तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट है, ठीक है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन, ओके। तो आइसोकोरिक में ध्यान रखना, आइसोकोरिक में वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, तो वॉल्यूम कांस्टेंट की वजह से वर्क हमारा क्या हो जाएगा, जीरो। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ठीक है, 2023 का क्वेश्चन है। A bicycle tire is filled with air having pressure of 270 किलो पास्कल, देखिए P1 दे रखा है at 27 डिग्री सेल्सियस, the approximate pressure of air in the tire when the temperature increases to 30 डिग्री सेल्सियस, ओके। हमेशा ध्यान रखना है जब भी टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में दे रखा हो तो हमको पहले कैलोरी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। देखो P1 हमको दे रखा है 270 किलो पास्कल, क्योंकि हमको आंसर किलो पास्कल में बताना है इसलिए हम 270 किलो पास्कल रहने देंगे इसको। T1 दे रखा है 27 डिग्री सेल्सियस, 27 को जब कैल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो क्या बन जाएगा 300 कैल्विन। T2 हमको निकालना है, ठीक है, और T2 दे रखा है 36 डिग्री सेल्सियस, 36 को कैल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो क्या बन जाएगा 36 प्लस 273, ठीक है, तो कितना बन जाएगा 309 कैल्विन, ठीक है। T2 इतना आ जाएगा। अब हमको पता है कि जो P होता है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है T के, तो अगर हमारे पास P1 T1 है एक सिस्टम और एक सिस्टम है P2 T2, तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, P1 अपॉन T1 इक्वल्स टू P2 अपॉन T2। P1 की वैल्यू कितनी है 270, T1 की वैल्यू 300, P2 की हमको निकालनी है और T2 की 309। ये इजीली सॉल्व हो जाएगा, सॉल्व होने के बाद क्या हो जाएगा, P2 आ जाएगा हमारे पास 278 किलो पास्कल, ठीक है। बस ध्यान क्या रखना है कि पहले डिग्री सेल्सियस से कैल्विन में कन्वर्ट करना है, जब भी सही आंसर आएगा वरना गलत ही आएगा। सो द करेक्ट आंसर इज 278 किलो पास्कल विच इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट्स, वन इज लेबल्ड एज असर्शन एंड द अदर इज लेबल्ड एज रीजन। Assertion is if dq and dw represent the heat supplied to system and the work done on the system respectively, then according to first law of thermodynamics dq equals to du minus dw। सही है, क्यों सही है, क्योंकि हमको पता है कि dq प्लस dw होता है, अगर dq की टर्म्स में लिखे तो क्या हो जाएगा du माइनस dw, ओके, बिकॉज dq इज द हीट सप्लाइड तो वो पॉजिटिव होगा और dw वर्क डन ऑन द सिस्टम, तो वर्क डन ऑन सिस्टम क्या होता है पॉजिटिव होता है, वर्क डन बाय द सिस्टम नेगेटिव होता है, वर्क डन ऑन द सिस्टम पॉजिटिव होता है, तो हमारा सही हो जाएगा dq इक्वल टू du माइनस dw, तो ये सही है, ठीक है। नेक्स्ट रीजन देखते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, तो ये भी सही है। फर्स्ट लॉ हमको क्या बोलता है, कंजर्व एनर्जी जो होती है वो कंजर्व रहती है, बस एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ट्रांसफर होती है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफर होती है, तो दोनों सही है, असर्शन रीजन। और जो असर्शन है, जो रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। बोथ ए
both A and R are correct and R is the correct explanation of A. तो ऑप्शन हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा. तो सिंपल फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पे क्वेश्चन था, बहुत ही ईजी क्वेश्चन था. नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा भी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से ही है. बस जस्ट स्टेटमेंट्स पढ़ने और बताना ही कौन से स्टेटमेंट सही है. तो हीट इज गिवन टू एन आइडियल गैस इन एन आइसोथर्मल प्रोसेस. इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस विल डिक्रीज. देखो पहले हम लिख लेते हैं कि क्या दे रखा है हमको. हीट इज गिवन टू एन आइडियल गैस, तो आइसोथर्मल प्रोसेस दे रखा है. आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होगा, टेम्परेचर डेल्टी जीरो. अगर डेल्टी जीरो तो देर इज नो चेंज इन इंटरनल एनर्जी, तो इंटरनल एनर्जी भी क्या होगा, जीरो ही होगा. मतलब नो चेंज इन इंटरनल एनर्जी, नो चेंज इन इंटरनल एनर्जी. तो देख लो किस में नहीं दे रखा चेंज. तो इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस विल नॉट चेंज. ठीक है, हमारा ऑप्शन क्या होगा, सी ऑप्शन सही होगा. तो सी किस किस में, तो ए गलत हो जाएगा और बी गलत हो जाएगा. या तो सी हो सकता है या डी हो सकता है. ठीक है, और क्या बोल रहा है, हीट इज गिवन टू एन आइडियल गैस. तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, डेल यू इक्वल्स टू क्यू माइनस डब्ल्यू. और डेल यू जीरो है तो जीरो इक्वल्स टू क्यू माइनस डब्ल्यू. तो क्यू इक्वल्स टू डब्ल्यू. मतलब जो हीट है, जो जितनी भी हीट हम दे रहे हैं वो सारी किस में कन्वर्ट हो रही है, वर्क में कन्वर्ट हो रही है. और कैसा वर्क है, पॉजिटिव वर्क है, नेगेटिव वर्क है, तो पॉजिटिव वर्क है. ठीक है, वर्क क्या है हमारा, पॉजिटिव है. तो हमारा ऑप्शन वन सही होगा इसमें. द गैस विल डू पॉजिटिव वर्क, द गैस विल डू पॉजिटिव वर्क. तो डी भी सही हो जाएगा. और हमारा मैंने पहले क्या बताया था, सी भी सही था. इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस विल नॉट चेंज बिकॉज क्या है, डेल्टी जीरो है. तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी एंड डी. ठीक है, हमारा ऑप्शन सही होगा डी. आई होप ये क्लियर होगा. बहुत ही ईजी क्वेश्चन था फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से. नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन भी असर्शन और रीजन पे बेस्ड है. तो गिवन बिलो आर द स्टेटमेंट्स, वन इज लेबल्ड एज असर्शन एंड अदर इज लेबल्ड एज रीजन. Assertion A, assertion of a reversible heat engine will be highest at -273 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ऑफ कोल्ड रिजर्वायर. ठीक है, तो हीट इंजन में क्या होता है, दो टेम्परेचर्स होते हैं. एक हमारा सिस्टम होता है जो कि वर्क करता है. हम यहाँ से क्या करते हैं, हीट देते हैं T2 पे. जितनी भी हीट देंगे वो सारी वर्क में कन्वर्ट नहीं होती है. जो बची हुई हीट होगी वो सिंक में चली जाएगी और सिंक का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, T1 हो जाएगा. यही होता है सिंपल जनरल बेसिक होता है रिवर्सिबल हीट इंजन का. तो वो बोल रहा है कि इफिशिएंसी ऑफ अ रिवर्सिबल हीट इंजन विल बी हाईएस्ट एट -270 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ऑफ कोल्ड रिजर्वायर. तो जब -270 डिग्री सेल्सियस होगा तो हमारी फॉर्मूला क्या होता है हमारा, n इक्वल्स टू 1 माइनस T1 अपॉन T2. T1 क्या है, सिंक का टेम्परेचर है. सिंक मतलब कोल्ड रिजर्वायर. ठीक है, सिंक मतलब कोल्ड रिजर्वायर. तो सही है ऑप्शन. क्योंकि जब जितना कम टेम्परेचर होगा कोल्ड रिजर्वायर का उतनी ज़्यादा हमारी इफिशिएंसी होगी. ठीक है, जितना कम टेम्परेचर होगा कोल्ड रिजर्वायर का उतनी ज़्यादा हमारी इफिशिएंसी होगी. ठीक है, और जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा हॉट रिजर्वायर का उतनी ज़्यादा हमारी इफिशिएंसी होगी. ठीक है, मतलब T1 क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, और T2 क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए. तो जितना कोल्ड होगा जितना कोल्ड होगा सिंक वाला रिजर्वायर उसमें क्या होगी, एफिशिएंसी ज़्यादा होगी. तो हमारा असर्शन ट्रू है. सेकंड देखते हैं हम रीजन. द एफिशिएंसी of Carnot's engine depends not only the temperature of cold reservoir but depends on the temperature of hot reservoir too and is given as this. तो ये भी सही है क्योंकि अभी बताया मैंने कि दोनों पे डिपेंड होती है. ठीक है, दोनों पे डिपेंड होती है. T1 ज़्यादा होना चाहिए और T1 कम होना चाहिए. मतलब कोल्ड रिजर्वायर का टेम्परेचर कम होना चाहिए और हॉट रिजर्वायर हॉट होना चाहिए. मतलब टेम्परेचर क्या होना चाहिए, ज़्यादा. सो दोनों ही ट्रू है. ठीक है, एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन. ठीक है, जो रीजन है वो हमारा सही है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन बताता है
असर्शन के लिए, तो हमारा आंसर हो जाएगा डी। हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन गामा Cp अपॉन Cv, मैं इसको बड़ा कर देता हूं। द करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन गामा Cp अपॉन Cv एंड टेम्परेचर T इज, तो इसमें क्या होगा? जो गामा होता है वो डिपेंड नहीं करता टेम्परेचर। हमेशा ध्यान रखना है कि दैट गामा इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। जो गामा होता है, गामा क्या होता है? Cp अपॉन Cv, ओके, रेशियो ऑफ हीट कैपेसिटी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर एंड हीट कैपेसिटी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। सो गामा इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, ओके, इट डज नॉट डिपेंड ऑन द टेम्परेचर, चाहे टेम्परेचर ज़्यादा हो चाहे टेम्परेचर कम हो। सो हमारा ऑप्शन क्या होगा? अब बी ऑप्शन जो है ना वो शायद थोड़ा ब्लर दिख रहा है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर गामा डायरेक्ट पूछ लूँ T0, ओके। T0 मीन्स, T0 क्या हो जाएगा? 1, मतलब गामा इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, ओके। सो बी ऑप्शन हमारा सही होगा, दैट गामा इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर और गामा डज नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट भी कार्नोट इंजन का ही है, 2023 में पूछा गया है ये क्वेश्चन, शिफ्ट 2 में। क्वेश्चन है, अ कार्नोट इंजन ऑपरेटिंग बिटवीन टू रिजर्वायर हैज एफिशिएंसी 1/3, ओके। तो एफिशिएंसी कितनी रखी है हमको? 1/3 दे रखी है। व्हेन द टेम्परेचर ऑफ कोल्ड रिजर्वायर रेज्ड बाय x, इट्स एफिशिएंसी डिक्रीजेस टू 1/6। पहले हमको देखो दो केसेस दे रखे, तो पहले हम केस 1 लेंगे। केस 1 जिसमें हमको एफिशिएंसी दे रखी है 1/3, ठीक है। और वो बोल रहा है व्हेन द टेम्परेचर ऑफ कोल्ड रिजर्वायर रेज्ड बाय x। केस 2 यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, जिसमें जो टेम्परेचर है कोल्ड रिजर्वायर का वो x से ज़्यादा हो गया, ठीक है। इट्स एफिशिएंसी डिक्रीजेस टू 1/6, तो जो N2 बन गया वो कितना बन गया? 1/6। पहले 1/3 था और 1/2 बन गया, सॉरी 1/6 बन गया जब कोल्ड रिजर्वायर का टेम्परेचर जो है वो x से रेज कर दिया गया। मैंने बताया था पिछले क्वेश्चन में कि जब कोल्ड रिजर्वायर का टेम्परेचर क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए, जब एफिशिएंसी ज़्यादा होगी। बट इन लोगों ने क्या कर दिया? कोल्ड रिजर्वायर का टेम्परेचर ज़्यादा कर दिया तो एफिशिएंसी क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। तो इसे पूछ क्या रहा है? द वैल्यू ऑफ x इज द टेम्परेचर ऑफ हॉट रिजर्वायर इज दिस। तो हमको क्या दे रखा है? हमको x की वैल्यू पूछी है और हमको दे रखा है TH, टेम्परेचर ऑफ हॉट रिजर्वायर, दैट इज 99 डिग्री सेल्सियस। तो पहले इसको केल्विन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो 99 प्लस 273 करना पड़ेगा, तो TH हो जाएगा हमारा 372 केल्विन। तो यहाँ से अगर हमारे को फॉर्मूला क्या बताएं? हमको फॉर्मूला पता है 1 माइनस TH अपॉन TC। तो यहाँ से हम TC की वैल्यू निकाल लेंगे, इस केस से हम TC की वैल्यू निकाल लेंगे, तो 1/3 इक्वल्स टू 1 माइनस TH की वैल्यू है 372 अपॉन TC। यहाँ से TC की वैल्यू निकालेंगे इजीली। TC की वैल्यू क्या आ जाएगी? 248 केल्विन। ये तो इजी निकल जाएगा, 248 केल्विन निकल गया। यहाँ से TC की वैल्यू केस सेकंड में क्या बोल रहा है कि जो TC का टेम्परेचर है वो x से रेज कर दिया, मतलब जो TC डैश बन गया, अब क्या बन गया? x प्लस 248 बन गया, ठीक है। TC डैश क्या बन गया? x प्लस 248 केल्विन बन गया। तो अब हम इसके लिए हमको x की वैल्यू निकालनी है, तो अब हम इसके लिए इक्वेशन लिखेंगे। और इस कंडीशन में जो हमारी इफिशियंसी है वो कितनी हो गई? 1/6 हो गई, ठीक है। तो हम इसके लिए सेम इक्वेशन लिख देते हैं, 1/6 इक्वल्स टू 1 माइनस TC अपॉन TH। TC क्या बन गया? x प्लस 248 केल्विन अपॉन TH तो सेम ही रहेगा। TH कितना है? 372 केल्विन। यहाँ से इजीली x की वैल्यू सॉल्व हो जाएगी। x की वैल्यू सॉल्व होने के बाद क्या आएगा? 62 केल्विन। ओके, दैट्स हाउ यू हैव टू अटेम्प्ट। ऐसे आपको क्वेश्चन करना था, जस्ट सिंपल क्वेश्चन था, किस पे बेस्ड था? एफिशिएंसी बेस्ड था। x की वैल्यू निकालनी थी, x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 62 केल्विन हो जाएगी। मतलब हमने 62 केल्विन
टेम्परेचर क्या कर दिया, बढ़ा दिया, 62 केल्विन से टेम्परेचर बढ़ा दिया। पहले कितना था, पहले हमारा 248 था, 248 से हमने क्या कर दिया 62 केल्विन और बढ़ा दिया, जिससे कि हमारी जो इफिशियंसी है वो क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स या सोर्स supplies heat to a system at the rate of 1000 W. 1000 W means 1000 watt, okay, not W, watt. If the system performs work at the rate of 200 W, okay, 200 watt, the rate at which internal energy of the system increases. Okay, we have to find the answer in watt, so we will not change the units, okay. But इसमें देखो हमको पता है कि हमने किसका फॉर्मूला पढ़ रखा है, हमने तो पढ़ रखा है कि du जो होता है, हमने क्या पढ़ रखा है कि जो du होता है वो क्या होता है, dq माइनस dw, यही पढ़ा है। बट यहाँ पे रेट दे दिया है। अब जब भी रेट देते हैं ना, रेट मतलब क्या होता है कि कोई भी क्वांटिटी जो है वो कितने टाइम में चेंज हो रही है, ठीक है, चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो हम क्या लिख देंगे इसको, du अपॉन dt इक्वल्स टू dq अपॉन dt माइनस dw अपॉन dt। यही तो रेट बन गया, ये क्या बन गई, इंटरनल एनर्जी की रेट, रेट एट विच इंटरनल एनर्जी इंक्रीजेस, ये हमको निकालना है, ठीक है। तो हमको इस क्वेश्चन में क्या निकालना है, हमको इस क्वेश्चन में du अपॉन dt ही निकालना है, ठीक है। तो सिंपल है, क्या करना पड़ेगा, du अपॉन dt इक्वल्स टू, इसकी वैल्यू हमको दे रखी है dq अपॉन dt की, dq अपॉन dt की वैल्यू क्या है, आ सोर्स सप्लाइज हीट टू सिस्टम एट द रेट ऑफ 1000 वाट, सो 1000 हो जाएगा, माइनस dw अपॉन dt की वैल्यू भी दे रखी है। जब हमने हीट दी तो सिस्टम क्या करेगा, वर्क करेगा, और वर्क किस रेट पे कर रहा है, 200 वाट्स की रेट पे कर रहा है, तो 200, सो ये हो जाएगा 800 वाट। सो दिस इज हाउ यू हैव टू फाइंड द रेट एट विच इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इंक्रीजेस। So it increases at the rate of 800 watts. So the correct answer will be option C. Option C will be the correct answer. Next question पे चलते हैं. Consider two containers A and B containing monoatomic gases at the same pressure, volume and temperature. Okay, क्या क्या दे रखा है हमको, प्रेशर सेम दे रखा है, वॉल्यूम सेम दे रखा है, टेम्परेचर सेम दे रखा है. The gas in A is compressed isothermally to 1/8 of its original volume, while the gas in B is compressed adiabatically. Okay, तो पहली जो गैस थी वो दोनों कंप्रेस्ड हो रही है, पहली जो थी वो आइसोथर्मली कंप्रेस्ड हो रही है और दूसरी जो है एडियाबेटिकली कंप्रेस हो रही है टू 1/8 of its original volume. The ratio of final pressure of the gas in B to the gas in A. ओके, हमको रेशियो निकालना है, किसका रेशियो निकालना है, फाइनल प्रेशर का. तो पहला केस देखेंगे, पहला केस क्या हो जाएगा, केस 1. पहला केस में क्या है, आइसोथर्मली है. अब हमको पता है आइसोथर्मल की कंडीशन में क्या होता है, पीवी इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट होता है. पीवी इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट तो हम लिख सकते हैं P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2. ठीक है. अब प्रेशर और वॉल्यूम टेम्परेचर कांस्टेंट सेम ही है, ठीक है, बट बाद में क्या करा, आइसोथर्मली कंप्रेस कर दिया 1/8, मतलब जो V2 है वो क्या बन गया, V1/8 बन गया. ठीक है, कंप्रेस करा है इसलिए वॉल्यूम कम हो जाएगी, इसलिए मैंने अपॉन लिखा है. अगर एक्सपेंड करते तो 8 टाइम्स बढ़ जाती है, ठीक है, तो 8 V1 हो जाता, बट यहाँ पे कंप्रेस्ड है, यहाँ पे क्या है, कंप्रेस्ड है, तो 8 V1/8 हो जाएगा. तो हम क्या कर देंगे, तुम्हारा प्रेशर चेंज होगा तो हमारा P1 V1 इक्वल्स टू P2 ऐसे रहेगा, V2 की वैल्यू देनी V1/8. V1 से V1 कैंसिल, तो हमारे पास क्या बनेगा, P2 इक्वल्स टू 8P1. ठीक है, पहले हमारी इक्वेशन ये आई, P2 इक्वल्स टू 8P1. केस 2 लेते हैं. केस 2 क्या है हमारा, एडियाबैटिक है. एडियाबैटिक में हमको पता है कि पीवी गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट होता है.
पी वी गामा इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट होता है, क्योंकि मोनो एटमिक गैस है, क्योंकि मोनो एटमिक गैस दे रखा है, तो जो गामा होता है वो कितना होता है 5/3। ठीक है, मोनो एटमिक गैस के लिए जो गामा होता है वो कितना होता है 5/3 या 1.44। ये याद होनी चाहिए वैल्यू, क्योंकि डायरेक्ट जल्दी से तो निकालना पड़ेगा CP/CV से, डायरेक्ट याद होगी तो बहुत जल्दी क्वेश्चन हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे, हम क्या रखेंगे P1 V1 गामा इक्वल्स टू P2 V2 गामा। तो अब वैल्यूज रख देंगे, P1 तो P1 ही रहेगा, V1 गामा, P2 भी सेम ही रहेगा। V2 क्या हो गया, एडियाबेटिकली कंप्रेस्ड हो रहा है 1/8, तो V2/8 हो जाएगा, V2/8 गामा। ओके, सो अब क्या हो जाएगा, V1 से ये V1 नहीं हुआ, ये क्या होगा V1 होगा और यहाँ पे गामा ही रहेगा। ठीक है, V1 से V1 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, V1 से V1 कैंसिल हो जाएगा, V1 गामा से V1 गामा कैंसिल, तो हमारे पास क्या बन जाएगा P2 इक्वल्स टू P1 8 की पावर गामा। और गामा क्या है हमारे पास, गामा की वैल्यू रख देते हैं, तो P2 हो जाएगा P1 8 की पावर 5/3। ठीक है, तो यहाँ तक हमने क्या निकाल लिया, हमने यहाँ से निकाल लिया P2। अभी इसको P2 क्या कर देते हैं, इसको लिख देते हैं P2 आइसोथर्मल, या P2 रख देते हैं P2A, इसको लिख देते हैं P2B। ठीक है, क्योंकि ये किसके लिए है, एडियाबेटिक के लिए, और ये किसके लिए है, आइसोथर्मल के लिए। अब हमको क्या निकालना है, हमको इन दोनों का रेशियो निकालना है, तो मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। हमको क्या करना है, P2A, देखो लिखा हुआ है द रेशियो ऑफ फाइनल प्रेशर ऑफ गैस इन बी मतलब एडियाबेटिक, सो P2B/P2A निकालना है। ठीक है, P2B कितना हो जाएगा, P1 8 ऑफ 5/3, और P2A कितना दे रखा है 8P1, तो 8P1, P1 से P1 कैंसिल हो जाएगा, इसको सॉल्व कर लेंगे, तो 8 ऊपर चले जाएगा, 8 की पावर 1 है, तो 8 5/3 माइनस 1, 8 5/3 माइनस 1, मैं जस्ट पेज चेंज कर रहा हूँ। तो हमारे पास क्या आया, P2B/P2A। ठीक है, क्या था हमारे पास P2B/P2A क्या आया 8 की पावर 5/3 माइनस 1, तो मैं नेक्स्ट पेज में लिख देता हूँ इसको, 8 की पावर 5/3 माइनस 1, सो इसको एलसीएम लेके सॉल्व कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 5 - 3 2/3। इसका मतलब क्या है कि पहले 8 का स्क्वायर करना है, उसके बाद उसका क्यूब रूट लेना है, मतलब 1/3। 8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 64, ये हो जाएगा 1/3। 64 का क्यूब रूट कितना होता है 4, 4 4 16, 16 4 64। सो हमारा आंसर आ जाएगा, जो रेशियो आएगा P2B/P2A का रेशियो आएगा 4। सो दैट्स हाउ यू हैव टू डू दिस क्वेश्चन। ओके, सो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा बी आंसर करेक्ट होगा, आंसर 4। ठीक है, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, आई होप ये क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। सो ये पार्ट 1 है। ठीक है, इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन है ये, तो क्वेश्चन देखते हैं हम। एन इंजन ऑपरेटिंग बिटवीन द बॉइलिंग एंड फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर विल हैव। ठीक है, अब देखो वापस इंजन का क्वेश्चन है। इंजन में हमको पता होना चाहिए हमारा फॉर्मूला क्या होता है, हमारा फॉर्मूला होता है 1 - TC/TH। ठीक है, अब वो बोल रहा है TC और TH। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है वाटर का 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री को केल्विन में कन्वर्ट करेंगे 373 केल्विन, तो बॉइलिंग पॉइंट हमको पता लग गया। बॉइलिंग पॉइंट क्या है, बॉइलिंग पॉइंट कुछ नहीं है, यही हमारा हॉट रिजर्वायर का टेम्परेचर होगा। और फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है वाटर का, तो वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट सबको पता है, वाटर फ्रीज होता है 0 डिग्री सेल्सियस पे, तो केल्विन निकाल लेंगे, तो 273
केल्विन हो जाएगा, ठीक है। और यही हमारा जो टेम्परेचर है, क्या टेम्परेचर है, यही हमारा कोल्ड रिजर्व का टेम्परेचर है, तो टी सी हो गया। अब यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, एन निकाल लेंगे, 1 माइनस टी सी कितना है 273 केल्विन अपॉन टी एच कितना है 373 केल्विन। तो ये तो सॉल्व हो जाएगा इजीली, 373 माइनस 273 100 हो जाएगा ये अपॉन 373। तो ये सॉल्व हो कितना आ जाएगा 26.8। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 26.8% आ जाएगा, जो कि होता है 26%। ठीक लिखना है हमको, तो ऑप्शंस को नेग्लेक्ट करके सही आंसर निकालना था। तो हमारा जो आंसर आया वो कितना आया 26.8, ठीक है। अब हम ऑप्शंस देखते हैं। सो एफिशिएंसी बतानी है, एफिशिएंसी मोर देन 27%, नहीं एफिशिएंसी मोर देन 27% तो नहीं है। एफिशिएंसी लेस देन द एफिशिएंसी ऑफ अ कार्नोट इंजन ऑपरेटिंग विद द सेम टू टेम्परेचर्स, ये देखते हैं हम ऑप्शन एक बार। एफिशिएंसी इक्वल टू 27%, ऐसा भी नहीं है, 27% तो कम है। तो हमारा सही आंसर क्या होगा, हमारा आंसर होगा डी, एफिशिएंसी लेस देन 27%। तो हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। तो डी किस किस में आ रहा है, डी आ रहा है बी में और सी में। हमारा सी ऑप्शन तो गलत है क्योंकि एफिशिएंसी लेस देन 27% आ रही है, तो सी ऑप्शन गलत है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी एंड डी, ठीक है। हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी, क्योंकि बी ऑप्शन भी सही है, क्योंकि एफिशिएंसी हमेशा लेस देन ही होगी। ये एफिशिएंसी जो होगी, ये एफिशिएंसी हमेशा लेस देन होगी किससे, देन द एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन ऑपरेटिंग बिटवीन टू सेम टेम्परेचर। अगर दो सेम टेम्परेचर होंगे तो उससे तो क्या होगी, लेस ही होगी। सो दैट्स ऑल इन टुडेज वीडियो। अगर आपको और भी पीवाईक्यूज चाहिए थर्मोडायनामिक्स के फॉर आईआईटी जेई, प्लीज कमेंट बिलो, ओके। और आपको कोई भी क्वेश्चन में डाउट है, जिस कमेंट बताइए, मैं आपका हर कमेंट का रिप्लाई करूंगा। तो नेक्स्ट पीवाईक्यू सीरीज में हम इक्विलिब्रियम के नीट के 10 इयर्स की पीवाईक्यूज करने वाले हैं। सो जस्ट बी प्रिपेयर्ड, आप इक्विलिब्रियम कवर कर लीजिए, इक्विलिब्रियम पढ़ लीजिए, जिससे कि आप क्वेश्चन बहुत इजीली अटेम्प्ट कर सकें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू माई चैनल, शेयर दिस टू योर फ्रेंड्स जो नीट और आईआईटी जेईई की प्रिपरेशन कर रहे हैं। मैं आपको जल्दी मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।